Welcome everybody. This is our fifth session in JEE Mains previous year question series for chapter System of Particles and Rotational Motion, also known as Rotational Mechanics for class 11. Before this, we have made 4 videos in this series, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these previous year questions, and name of that playlist is JEE Mains previous year question for physics. So you can go to our channel and go to playlist section. There you will find various playlists, and out of those there is a dedicated playlist for JEE Mains previous year questions. We have also started similar series for NEET previous year, so that will also be available in separate playlists, and that you can also find out in our YouTube channel. If you like these videos, then do like them, share them, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. And also, if you like to support us, then you can scan these QR codes and donate whatever amount you can. With this amount, we will be able to get new books and new better computer hardware, so that our future videos can give better content with better resolution. So with this, let's start today's video. In previous video, we have completed up to question number 39, and it's going to be long series because this chapter covers a lot of questions in previous year. I think one of the biggest chapter for class 11th. So this was the previous question which we solved, and theta comes out to be 63 degree. Let's start the next question. And here question looks quite bigger, so let's zoom it out slightly so that we can see things. Okay. So here we have to find out value of theta, cos of theta, and our options are here cut out due to some size problem. Okay, no problem. We will find out the right answer. So a uniform rod of length L is pivoted at one of its ends on vertical shaft of negligible radius. So radius is negligible. When the shaft rotates with angular speed omega, rod makes angle theta with it. To find theta, equate the rate of change of angular momentum. So first of all हमें यहाँ पे क्या find out करना होगा, angular momentum, उसका rate of change calculate करना होगा. About the center of mass to the torque provided by horizontal and vertical forces Fh and Fv. About the center of the mass, the value of theta is such that. So हमें यहाँ पे जो things find out करनी है, first of all हमें find out करना है dl by dt, rate of change of angular momentum, हमें ये find out करना है directed into the paper, और ये actually value already given है. So it is given ml square by 12 omega square sin theta cos theta. तो हमें अब साथ में टॉर्क निकालनी है. टॉर्क बाय Fh हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड टॉर्क बाय वर्टिकल फोर्स, ये दो टॉर्क्स भी हमें कैलकुलेट करनी. सो फॉर दीज टॉर्क्स लेट अस टॉक अबाउट फोर्सेस इन्वॉल्व. तो बिकॉज यहाँ पे जो आपकी रोड है वो कुछ ऐसे रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे फोर्सेस लगेंगे. नंबर ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल जो एज यूजुअल हमारा जो mg होता है मास, वो सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू बी एग्जैक्टली, जो कि आउटसाइड बाहर की तरफ एक्ट कर रहा होगा रोटेशन की वजह से. सो दिस विल बी F. So this is centrifugal force, और this is force due to mg, और आप इसको डायरेक्टली mg लिख सकते हो. सो नाउ जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है Fh, वो तो क्या आ गया, सेंट्रीपिटल.
और जो वर्टिकल फोर्स है वो यहाँ पे क्या है, mg। जब आप अगर यहाँ पे एरो देखोगे तो एरो अपोजिट है, बट जो जो एरो है वो जस्ट डायरेक्शन शो करने के लिए है। हमारे वर्टिकल फोर्स यहाँ पे mg है और सेंट्रीपिटल फोर्स fc है, और fc को हम लिख सकते हैं m r ओमेगा स्क्वायर। नाउ बिकॉज जब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो टॉर्क ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स, और हॉरिजॉन्टल किसके इक्वल है, एफसी के इक्वल है। तो इट विल बी, अगर हम यहाँ पे नेमिंग कर दें, सपोज दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, और एंड दिस इज पॉइंट बी। सो टॉर्क होगा आर ओ ए क्रॉस एफ सी। आर ओ ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इट इज एल बाई टू, बिकॉज रोड की लेंथ एल है तो ओ ए उसका हाफ होगा, तो एल बाई टू इंटू एफ सी, क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एंगल, जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे एंगल के रिस्पेक्ट में ध्यान से देखें तो सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट ओ है, तो ये तो आपका रिप्रेजेंट करेगा रेडियस वेक्टर, ये हमारा रेडियस वेक्टर है, एंड दीज आर आवर फोर्सेस। ये हमारा एफ सी फोर्स लग रहा है और ये हमारा एम जी फोर्स लग रहा है। तो जो टॉर्क होता है वो आर से एफ के बीच का एंगल मेजर करता है। दिस इज आर, दिस इज एफ, सो आर से एफ के बीच का एंगल ये एंगल होगा, और बिकॉज हमें ये पता है कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, आर से एफ के बीच का एंगल। और जब हम एम जी का टॉर्क निकालेंगे तो ये कंप्लीट एंगल लेना होगा हमें, इट विल बी 360 माइनस थीटा, वो हम आपको आगे बताएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो एम, और जो रेडियस है यहाँ पे हमें रेडियस भी लेनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है एल बाय टू इंटू साइन थीटा लिख देते हैं, और इंटू एम ओमेगा स्क्वायर। नाउ कमिंग टू रेडियस, तो रेडियस क्या होगी, बिकॉज पार्टिकल आपका इस वे में रोटेट कर रहा है तो जो आपकी रेडियस होने वाली है, रेडियस विल बी दिस डिस्टेंस, और हम ओ ए बी ले चुके हैं तो इसको हम सी ले लेते हैं सपोज, तो रेडियस हो जाएगी ए सी। और बिकॉज ये वाली लेंथ आपकी एल बाई टू है, ओ ए की वैल्यू आपकी एल बाई टू है, यहाँ पे लेट मी ड्रॉ दिस ट्रायंगल, ये आपका पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये एंगल थीटा है, ये वैल्यू आपकी एल बाई टू है, तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी एल बाई टू साइन थीटा, और ओ सी की वैल्यू हो जाएगी एल बाई टू कोस थीटा। सो यहाँ पे जो हमारे पास यस जो रेडियस होगी, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी ए सी के इक्वल, और ए सी है एल बाई टू ऑफ साइन थीटा, एल बाई टू ऑफ साइन थीटा। एंड आल्सो वी मेड ए मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, कि ये एंगल थीटा नहीं होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, बिकॉज ये थीटा एंगल है तो इसके पैरेलल ये थीटा होता है, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आएगा, लेट मी करेक्ट दिस, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, तो ये साइन थीटा हम इधर लेके आए थे तो इट विल बी कोस थीटा। सो इन नेट हमारा जो रिजल्ट बनेगा इट विल बी एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये आ जाती है टॉर्क ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी। नाउ कमिंग टू टॉर्क ड्यू टू वर्टिकल फोर्स, और टॉर्क ड्यू टू वर्टिकल, और ये हो जाएगा एम जी। नाउ अगेन इट विल बी, बिकॉज एम जी भी सेम पॉइंट पे ही लग रहा है, और ये आपका पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, तो इसमें भी आर ओ ए क्रॉस यहाँ पे एम जी आएगा,
तो आर ओ ए अगेन L/2 है इंटू एम जी और इंटू साइन ऑफ एंगल। जो एम जी और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है हमें उसका साइन लेना है। सो लेट अस अगेन ड्रॉ कर देते हैं सो दैट प्रॉपर कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये रेडियस वेक्टर है हमारे पास और ये है हमारे पास जो एम जी है एंड हियर इट इज एंगल थीटा। सो ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स था उसके लिए एंगल 90 माइनस थीटा है जो हमने अभी जस्ट अभी करेक्ट किया 90 माइनस थीटा। सो ये एम जी है और ये रेडियस वेक्टर है। बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में आप काउंटर क्लॉकवाइज चलते हो और आप आर से स्टार्ट होके एम जी पे जाओगे, ये आपका रेड कलर आर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जो एंगल मेजर करना है आर से स्टार्ट होके काउंटर क्लॉकवाइज एम जी तक मेजर करना है। तो ये जो आपका एंगल है सपोज इसको आप फाई बोल देते हो तो आपको यहाँ पे पता है दैट थीटा प्लस फाई इज 360 डिग्री और फाई इज 360 माइनस थीटा। सो यहाँ पे हम कर देते हैं 360 माइनस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक यस नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे ओनली कोस पॉजिटिव रहता है। सो इट विल बी माइनस L/2 mg और साइन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा एज इट इज। तो टोटल टॉर्क ये हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से, ये वर्टिकल फोर्स की वजह से, तो टोटल टॉर्क आ जाएगी आपके पास, नेट टॉर्क आ जाएगी m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 4 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है सो L/2 mg इंटू साइन। सो नाउ कमिंग टू, वापस ऊपर जाते हैं और हमें dl/dt ऑलरेडी गिवन है और जैसे हमें ये पता है कि दैट जो फोर्स होता है dp/dt, ऐसे ही जो टॉर्क होता है dl/dt। तो एक टॉर्क की वैल्यू हम नीचे ऑलरेडी निकाल चुके हैं और एक टॉर्क की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। सो लेट अस इक्वेट देम। पेस्ट, ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इस वैल्यू के, कॉपी पेस्ट here, so these values should be equal। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी ml है, यहाँ पे भी ml है और यहाँ पे भी ml है। सो ml हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m चला जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m चला जाएगा। साइन थीटा कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज सब में साइन थीटा है, सो साइन थीटा कैंसिल। नाउ राइट, हमारे पास जो बचता है इट इज L ओमेगा स्क्वायर cos थीटा बाय 12 इज इक्वल टू L ओमेगा स्क्वायर cos थीटा बाय 4 माइनस g/2 हमारे पास यहाँ पे बचता है। और इस टर्म को इधर लेके आ सकते हैं और g/2 को उधर ले सकते हैं, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। सो g/2 L ओमेगा स्क्वायर cos थीटा बाय 4 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ओनली 1 बचेगा और यहाँ से तो 1/3 आ जाएगा। तो g/2 इज इक्वल टू L ओमेगा स्क्वायर cos थीटा बाय 4 और इससे हमें मिलेगा 2/3 और ये हो जाएगा 6 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट g इज इक्वल टू L ओमेगा स्क्वायर cos थीटा बाय 3 और अगर हम यहाँ से cos थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3g सॉरी 3g बाय L ओमेगा स्क्वायर। सो लेट अस चेक कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, cos ऑफ थीटा ही कैलकुलेट करना है। So it comes out to be 3g by L omega square। 3g यहाँ पे है
और अगर हमने कोई मिस्टेक ना की हो, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3g बाय एल ओमेगा स्क्वायर। और हमारे यहाँ पे ऑप्शन कट चुका है थोड़ा, होपफुली दिस विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे 3g आ रहा है ऊपर और नीचे एल ओमेगा स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Shown in the figure is rigid and uniform 1 meter long rod AB held in horizontal position by two strings tied to ends attached at the ceiling. The rod is massless M and another weight is 2m. रोड का मास, सॉरी रोड मासलेस नहीं है, रोड का मास m है। तो रोड का मास रोड के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है, यानी डाउनवर्ड कहाँ पे एक्ट करेगा, 50 मीटर पे यहाँ पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और यहाँ पे 2mg कर रहा है, 2m है तो यहाँ पे 2g है, 2mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। एंड अगर हम यहाँ पे ये तो हमारे पास जो दो स्ट्रिंग्स हैं इनके अंदर अगर टेंशन ले लें तो ये T1 होगा और ये टेंशन हो जाएगी हमारे पास T2। तो टेंशन इन स्ट्रिंग ए हमें बतानी है और इसको लेटस इसको TA बोलते हैं और इसको TB बोलते हैं। तो बिकॉज ये पूरा सिस्टम किस पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, यानी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मींस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को इक्वेट करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स mg का है जो कि रोड की वजह से, रोड के मास की वजह से, और ये 2mg का वेट हमने हैंग किया हुआ। तो यहाँ से आ जाता है T ऑफ A प्लस T ऑफ B इज इक्वल टू mg प्लस 2mg यानी कि 3 mg। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास और हमें यहाँ पे T ऑफ A निकालना है। तो लेट अस कैलकुलेट टेंशन टॉर्क अबाउट पॉइंट O, टॉर्क अबाउट पॉइंट, तो सॉरी B है ये, नोट O, और अबाउट पॉइंट B हम टॉर्क निकालते हैं। बिकॉज पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो सिस्टम रोटेट नहीं कर रहा, अगर सिस्टम रोटेट नहीं कर रहा तो टॉर्क 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, 2mg और mg, ये किस टाइप की टॉर्क देंगे हमें, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देंगे, तो ये पॉजिटिव टॉर्क होगी। और जो T ऑफ A है ये हमें देगा किस टाइप की टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क, तो ये नेगेटिव टॉर्क होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2mg इनटू इसका B पॉइंट से डिस्टेंस 25 का होगा, 100 माइनस 75, और हम सेंटीमीटर में ही कर रहे होंगे सब कुछ, प्लस जो mg है इसका डिस्टेंस होगा 50 एंड माइनस, बिकॉज जो A की टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाती है, T ऑफ A इनटू उसका डिस्टेंस B पॉइंट से 100 का, और टोटल टॉर्क 0 होनी चाहिए बिकॉज रोड रोटेट नहीं कर रहे। तो ये आता है 50 mg और ये आता है 50 mg, तो टोटल ऐड करके हो जाता है 100 mg इज इक्वल टू TA इंटू 100, और यहाँ से आप लिख सकते हो दैट T ऑफ A इज इक्वल टू mg, और यहाँ से फिर लिख सकते हो आप T ऑफ B इज इक्वल टू 2mg। सो हमें ओनली A का फाइंड आउट करना है, सो A का हो जाएगा 1 mg, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform cylinder of mass m and radius r is pulled over a step height of a is less than r by applying a force F that is at its center and perpendicular to the plane through the axis of cylinder on the which the step, the minimum value required for F is। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें F की मिनिमम वैल्यू बतानी है और जो F है वो परपेंडिकुलर लगाया जा रहा है, मींस, और किसके परपेंडिकुलर लगाया जाए ये भी इंपॉर्टेंट है कि F किसके परपेंडिकुलर है, टू द प्लेन थ्रू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर ऑन द एज, मींस जो जहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन होगा उसके परपेंडिकुलर, और सेंटर ऑफ रोटेशन आपका ये पॉइंट होगा बिकॉज आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसके अराउंड रोटेट करेगा। तो ये वाला एंगल आपके लिए कितना है, 90 डिग्री है। सो यहाँ पे F है जो इसको रोटेट करवा के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और साथ में यहाँ पे mg डाउनवर्ड होगा जो क्या करेगा, इस F जो
टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, mg यहाँ पे, सॉरी अगेन, f यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और mg यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो f की टॉर्क को mg बैलेंस करने की कोशिश करेगा और इन शॉर्ट अगर इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो जो टॉर्क ऑफ f है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू टॉर्क ऑफ mg होनी चाहिए। और यही इस क्वेश्चन का की प्रिंसिपल है कि आपको f की टॉर्क को ग्रेटर देन इक्वल टू या जस्ट आप दोनों को अगर इक्वेट कर दोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी कि f की टॉर्क कितनी होनी चाहिए और उससे आपको f की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट अस डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम आउट करके बना लेते हैं सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी रहे। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है जहां पे जिसके अराउंड रोटेट हो रहा है सब कुछ। नाउ एज पर मेंशन, जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें ए गिवन है एंड यहाँ से सेंटर से, सपोज इसका सेंटर यहाँ पे है, ये जस्ट हम मतलब डायग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, बस थोड़ा हाइट के लिए हम थोड़ा ऊपर बना रहे हैं। दिस इज ए एंड दिस इज आर। यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ, ये फोर्स एफ लग रहा है और जो ये एंगल है ये है 90 डिग्री। और यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा एम जी, डाउनवर्ड है। नाउ लेट अस डू, ये हो गया एम जी और ये हो गया फोर्स एफ। तो हम पहले दोनों की इंडिविजुअल टॉर्क्स कैलकुलेट करते हैं और इंडिविजुअल टॉर्क्स को कैलकुलेट करके हम बाकी की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी कुछ मिसिंग नहीं है, एज पर डायग्राम हम सब चीजें यहाँ पे बना चुके हैं। पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं। ये सपोज पॉइंट ओ है, स्मॉल ए हम यूज कर चुके हैं तो हम ओ, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा सपोज, रेस्ट इज ओके। सो लेट अस स्टार्ट। सो टॉर्क ड्यू टू एफ, तो ये क्या होगी, फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। यहाँ पे आर कौन सा है, ये, और रेडियस वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड होता है और आपका पॉइंट ऑफ मेजरमेंट ये है यहाँ पे, तो रेडियस वेक्टर यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा होगा। ये जो रेडियस वेक्टर है ये ऐसे आउट जा रहा होगा बाहर की तरफ। सो रेडियस की वैल्यू आर है, एफ की वैल्यू एफ है, साइन ऑफ एंगल। नाउ आर क्रॉस एफ, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आप आर से मेजर करोगे, तो यहाँ पे जो एंगल होगा आर से स्टार्ट होके एफ तक जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप देखोगे तो ये एंगल होगा, आपने आर से स्टार्ट किया, एफ तक गया, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, क्या आता है 270 डिग्री आएगा, बिकॉज ये बीच वाला पार्ट कितना है 90 डिग्री है, तो ये वाला भी 90 हो जाएगा, तो 360 माइनस 90 270 डिग्री। सो लेट अस इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे एंगल हो जाएगा साइन ऑफ 270 डिग्री और साइन 270 होता है -1, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस आर। नाउ टॉर्क ड्यू टू एम जी, कि एम जी की वजह से कितना टॉर्क होगा। तो अगेन रेडियस वेक्टर ऐसे है, ये एम जी है, सो इट विल बी आर क्रॉस एम जी फोर्स। तो आर की वैल्यू तो रेडियस है, एम जी की फोर्स की वैल्यू एज इट इज। नाउ साइन ऑफ एंगल, इनके दोनों के बीच में साइन ऑफ एंगल कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा आर से स्टार्ट होके एम जी तक जाएगा, विल बी दिस। और अगर आप फॉर कन्वीनियंस सपोज कीजिए, अगर आप ये वाला एंगल थीटा मान लेते हो
तो इन दोनों का बीच का एंगल जिसको हमने फाई माना था, तो हमें ये पता है फाई प्लस थीटा कितना होगा 180 डिग्री, और यहाँ से फाई आ जाएगा 180 माइनस थीटा, सो 180 माइनस थीटा। और ये हमने फाई क्यों लिया है यहाँ पे, ये अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर होगा कि हमने ये थीटा वाला एंगल क्यों लिया, फाई वाला एंगल क्यों नहीं लिया। सो आर एम जी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इट विल बी पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा। नाउ अगर आप इसको ऐसे लिखें आर साइन थीटा इंटू एम जी, तो अगर आप देखते हो यहाँ पे आपके पास आर साइन थीटा आ रहा है, ये वैल्यू आर है, ये थीटा है, तो यहाँ पे अगर आप आर साइन थीटा प्लॉट करना चाहो तो आपको आर साइन थीटा ऐसे मिलेगा। ये जो लेंथ हो जाएगी, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर साइन थीटा के इक्वल होगी। यहाँ पे हम बी सी डी ऑलरेडी ले चुके हैं, सो लेट अस डू, हम यहाँ पे ई ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम ई बोल देते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू बी ई इंटू एम जी। सो अब हमें बीई की वैल्यू निकालनी है कि बीई की वैल्यू कितनी होगी, और उसके बेसिस पे हम बाकी की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, हमें ये पता है कि बीसी की वैल्यू ए है, तो जो ईडी है उसकी वैल्यू भी ए होगी। यहाँ पे हमें ये पता है दैट जो बीसी है उसकी वैल्यू ए के इक्वल है, तो उसके पैरेलली ईडी भी उतना ही होगा, सो इक्वल टू ईडी। और यहाँ से अगर हम ओ ई की वैल्यू निकालने जाएं, ओ ई होगा ओ डी माइनस ई डी। ओ डी किसके इक्वल है, ओ से डी ये सर्कल की रेडियस है, और ई डी किसके इक्वल है, ए के इक्वल। सो जो आपका ये वाला डिस्टेंस है, इट कम्स आउट टू बी आर माइनस ए। तो अब आपके पास जो ये है ट्रायंगल ओ ई बी, ये एक बन जाती है राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे, ये पॉइंट ओ है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, दिस, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट ओ है, दिस इज, ये साइड आर है, और ये वाली साइड आर माइनस ए। तो अब आप ये साइड कैलकुलेट कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बिकॉज एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा, तो ये ओ ई यहाँ पे बेस का काम करेगा। सो ये वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। इसको आप फर्दर सॉर्ट आउट कर सकते हो, आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप आर कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो इट विल बी 1 माइनस ए बाय आर होल स्क्वायर, और पूरा का पूरा आर बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी 1 माइनस ए बाय आर का होल स्क्वायर। अब अगर आप ऊपर जाते हो तो यहाँ पे मेंशन है एक अप्रोक्सीमेशन दैट a इज लेस देन r, तो ये अप्रोक्सीमेशन ऑलरेडी हमें गिवन है, एंड यहाँ पे a को कहीं पे नेग्लेक्ट नहीं किया गया, तो हम नेग्लेक्ट नहीं करते। और हम इस वैल्यू को एज इट इज वहां पे पुट कर देते हैं। सो लेट अस कॉपी, ये हमारे पास ओ ई की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू कहाँ पे, सॉरी बीई की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू यहाँ पे। सो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगी बीई इंटू एम जी। सो दिस इज द वैल्यू बीई एम जी आर इंटू दिस। नाउ हमने ये बोला था कि जो एम जी की टॉर्क है उसको एफ की टॉर्क को बैलेंस करना होगा, और अगर यहाँ पे रोटेशन होना है तो एफ की जो टॉर्क है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, एम जी की टॉर्क से। तो अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड वाइज देखें, नेगेटिव पॉजिटिव टॉर्क तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने का काम कर रही है, अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए,
जो ये टॉर्क है मैग्नीट्यूड वाइज शुड बी इक्वल टू दिस, और इससे ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम पहले इक्वल वाला सोल्व करते हैं। सो आर ऑफ एफ इज इक्वल टू एम जी आर अंडर रूट 1 माइनस, इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आर माइनस ए बाय आर होल स्क्वायर। सो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम जी अंडर रूट 1 माइनस आर बाय आर स्क्वायर। और अगर हम ऊपर कंपेयर करें, सो here is the option A. So option A will be the right answer. Next question. Consider a uniform rod of mass m of 4m of length L pivoted about its center. तो center के around उसको fix किया गया है. A mass moving with velocity v making angle theta is equal to pi by 4 to the rod long axis collides with one end of the rod and sticks to it. The angular speed of the rod mass system just after the collision. So आपके पास एक रोड है, उसको सेंटर के अराउंड पिवट किया गया है, यानी कि सेंटर पे उसको फिक्स कर दिया गया है यहाँ पे। अब एक पार्टिकल से कोलाइड करता है जो कि एंगल कितना बना रहा है, वेलोसिटी का एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 टू द रोड्स लॉन्ग एक्सिस। रोड का लॉन्ग एक्सिस ये वाला है, तो यानी पार्टिकल की वेलोसिटी समथिंग लाइक ऐसे। डिफरेंट कलर, यस। सो पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसे है, और अगर यहाँ पे हम वर्टिकली लाइन को एक्सटेंड करके एंगल बनाएं, ये इस रोड के इस एक्सिस को एक्सटेंड करें, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा इट शुड बी पाई बाय 4। और यहाँ पे वेलोसिटी हम v ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगेन ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इट इज एल कंजर्वेशन टाइप क्वेश्चन। बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल कर सकते हो। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉइंट ओ, इधर बोलते हैं पॉइंट ए, सो एल आई हो जाएगा इक्वल टू एम वी आर, और यहाँ पे v क्रॉस r होता है, आई थिंक नॉट r क्रॉस v, एक्चुअल फॉर्मूला इज m इंटू r क्रॉस v। तो यहाँ पे हमें जो वेलोसिटी है उसको कंपोनेंट्स में तोड़ना होगा। जो हमारे पास ये वेलोसिटी है, दिस इज v, तो यहाँ पे इसके बाद हमारे दो कंपोनेंट बनेंगे, दिस वन, एक ये होगा, तो ये एंगल होगा पाई बाय 4। तो अगर ये एंगल पाई बाय 4 है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा p बाय रूट। सो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, मास ऑफ पार्टिकल कितना है m, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस o एक इक्वल है जो कि लेंथ का हाफ होगा, यानी कि l बाय 2, और वेलोसिटी है यहाँ पे v बाय रूट 2। नाउ जब पार्टिकल कोलाइड कर जाता है तो वो स्टिक करता है, यहाँ पे एज पर मेंशन स्टिक्स टू इट। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। फाइनल एंगुलर मोमेंटम हम कैसे, बिकॉज रोटेशन हो रही है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकालेंगे। सो आई फाइनल क्या होगा, आई ऑफ रोड अबाउट पॉइंट ओ दैट इज एम एल स्क्र बाय 12, और रोड का मास यहाँ पे 4m है, 4m एल स्क्र बाय 12 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट अबाउट पॉइंट ओ जो कि एम डी स्क्वायर होगा, मास उसका m है, डिस्टेंस उसका l बाय 2 है, तो l बाय 2 का स्क्वायर। इसको अगर हम ऐड कर दें, सो एम एल स्क्वायर बाय 12, इसको एम एल स्क्वायर बाय 3 लिखा जा सकता है, प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, और ये आ जाएगा इन शॉर्ट 7 ml स्क्वायर बाय, टोटल में 7 ml स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। सो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल है हमारे पास, मींस m l v बाय 2 रूट 2 इज इक्वल टू 7 ml स्क्वायर 12
इंटू ओमेगा। सोल्व करते हैं, मास से मास कैंसिल, एल से स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 6 कैंसिल, तो इट विल बी 6v बाय 7√2l इज इक्वल टू ओमेगा। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, √2 से मल्टीप्लाई करके, तो इट विल भी आ जाएगा 3√2v बाय 7l। so let us check, yes, 3√2v by 7l, option C matches our answer. Next question. So a particle of mass m is moving along a trajectory given by, ये trajectory given है हमें, torque acting on the particle about the origin, जो origin है वहां पे torque at t is equal to 0 हमें बतानी है। So in this question हमें x और y की वैल्यू गिवन है और हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है। और अगर आप देखो x और y की वैल्यू x नोड और y नोड की टर्म्स में गिवन है, प्लस कोज ऑफ समथिंग यहाँ पे हमें एडिशनल वैल्यूज गिवन है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, बिकॉज जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है इट इज r क्रॉस वो f होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी होगी और फिर f का वैल्यू निकालनी होगी और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। सो लेट अस डू। तो सब कुछ जो हमें करना है t इज इक्वल टू 0 पे करना है। सो x एट t इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगा, इट विल बी x नोट, जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो cos ऑफ 0 1 होता है, तो इट विल बी x नोट प्लस a, एंड y एट t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा y नोट प्लस b, बिकॉज दोनों के अंदर हमारे पास cos। तो जो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर है r की वैल्यू आ जाएगी x नोट प्लस a इंटू आई प्लस वाई नोट प्लस b इंटू जे, ये हमारे पास r की वैल्यू आ जाती है। नाउ अब हमें फोर्स चाहिए। फोर्स कैसे बनाया जा सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से, और वेलोसिटी हम इनका डेरिवेटिव करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो v ऑफ x विल बी dx बाय dt, बिकॉज x नोट तो कांस्टेंट है तो ओनली इसका डेरिवेटिव होगा a cos वाले का, so it will be minus a omega 1 sin omega 1 t। ऐसे ही जो vy होगी it will be dy by dt, और it will be minus a omega 2, सॉरी ये b आएगा, नॉट a, यहाँ पे b है, ये होगा b और ये हो जाएगा cos ओमेगा, सॉरी साइन, नॉट cos, साइन का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव साइन। नाउ हमारे पास वेलोसिटी आ गई, फिर इससे एक्सेलरेशन बना लेंगे अगेन। अब साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा 1, यहाँ से फिर से ओमेगा 1 आएगा तो ओमेगा 1 स्क्वायर हो जाएगा, cos ओमेगा 1 t, एंड वी वाई आ जाएगा माइनस बी ओमेगा 2 का स्क्वायर, सॉरी ए वाई, cos ओमेगा 2। सो हमारे पास एक्सेलरेशंस आ गए। अब हम ये एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से बना लेते हैं। फोर्स होगा मास टाइम एक्सेलरेशन, सो इट विल बी मास टाइम्स, नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेते हैं, a ओमेगा 1 स्क्वायर cos ओमेगा 1 t, ये आई डायरेक्शन यानी कि x डायरेक्शन में, प्लस b ओमेगा 2 स्क्वायर और इसका cos ओमेगा 2 j डायरेक्शन। ये हमारे पास फोर्स आ गया, और फोर्स भी हमें t इज इक्वल टू 0 पे लेना होगा, तो फोर्स t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा माइनस एम एज इट इज। यहाँ पे आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, ये भी cos 0 1, सो a ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस b ओमेगा 2 स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी फोर्स के लिए। ये हमारे पास डिस्टेंस के लिए वैल्यूज हैं, ये हमारे पास फोर्स के लिए वैल्यू है, और यहाँ पे साथ में आई और जे कैप भी है।
तो जस्ट अब हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट होगा कि आर क्रॉस एफ है विथ आई जे के तो हमारे पास जीरो ही है। आई की वैल्यू है यहाँ पे एक्स नोड प्लस ए, यहाँ पे है वाई नोड प्लस बी, यहाँ पे है जीरो, यहाँ पे है माइनस एम ए ओमेगा वन स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस एम बी ओमेगा टू स्क्वायर और ये जीरो। सो अगर आप देखो यहाँ पे आई और जे के जो कंपोनेंट है वो तो जीरो चले जाएंगे, ओनली हमारे पास के कंपोनेंट आएंगे। सो के प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें दिस माइनस दिस, सो एक्स नोड प्लस ए इंटू माइनस एम पी ओमेगा टू स्क्वायर माइनस वाई नोड प्लस बी माइनस एम बी ओमेगा टू स्क्वायर। यहाँ से m को आप बाहर ले जा सकते हो, एंड सॉरी यहाँ पे a है और ये ओमेगा वन है, मेकिंग मल्टीपल मिस्टेक्स। तो ये हो जाएगा a वन ओमेगा वन स्क्वायर, सॉरी नॉट ओनली a, मिस्टेक। ओके, सो m को बाहर ले जा सकते हैं और हम क्या करते हैं माइनस m बाहर ले जाते हैं ताकि बीच में नेगेटिव साइन रहे। सो माइनस m के मल्टीप्लाई करते हैं एक्स नोड बी ओमेगा टू स्क्वायर और माई बाहर चला गया प्लस ए बी ओमेगा टू स्क्वायर, माइनस एम बाहर चला जा चुका है तो यहाँ पे माइनस साइन ही रहेगा, माइनस वाई नोड ए ओमेगा वन स्क्वायर एंड माइनस ए बी ओमेगा वन स्क्वायर। ये हमारे पास बचेगा। इसको हम थोड़ा सा फिर से एडजस्ट करके लिख सकते हैं। अगर हम ए बी वाले पार्ट को सेपरेट कर दें और एक्स नोड और वाई नोड वाले पार्ट को सेपरेट करें तो एक्स नोड बी ओमेगा टू स्क्वायर माइनस वाई नोड बी वाई नोड ए ओमेगा वन स्क्वायर, और जो ए बी वाला पार्ट है इसे ए बी कॉमन ले लेते हैं प्लस ए बी ओमेगा टू स्क्वायर माइनस ओमेगा वन स्क्वायर। तो अगर हम कंपेयर करें तो माइनस एम के हमारे पास अवेलेबल है हेयर, माइनस एम के हमारे पास अवेलेबल है एक्स नोड बी ओमेगा टू स्क्वायर, एक्स नोड बी ओमेगा टू स्क्वायर माइनस वाई नोड ए ओमेगा वन स्क्वायर, और इसमें ये इन्होंने टर्म एलिमिनेट कर दी है प्लस ए थ्री ओमेगा वन टू ओमेगा टू स्क्वायर। सो विद दिस अगर हम इन चीज़ों को कंपेयर करें तो हमारा आंसर यहाँ से ऑप्शन आंसर डी होता है, ऑप्शन जो राइट ऑप्शन बनता है। और यहाँ पे आंसर से कुछ टर्म्स को एलिमिनेट किया गया है, उसमें कुछ क्राइटेरिया लिया गया होगा एलिमिनेशन के लिए, but from this calculation our answer is option D, right answer is option D. Next question, time dependence of a position of a particle of mass m is equal to 2, ये time dependence यानी radius distance given है, angular momentum with respect to origin at time is equal to 2, so RT की वैल्यू हमें given है 2ti minus 3t square g, डिस्टेंस से हम वेलोसिटी बना सकते हैं। सो वीटी हो जाएगा इसका टाइम डेरिवेटिव इट विल बी 2i माइनस 6t जे, और यहाँ से आप एक्सेलरेशन बना सकते हैं 80, इट विल बी ये कांस्टेंट है तो 0 नेगेटिव 6j, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। और टाइम इजिकल टू 2 पे बताना है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। नाउ गोइंग टू रेडियस या डिस्टेंस, डिस्टेंस एट टाइम इजिकल टू 2 हो जाएगा 4i माइनस 3 इंटू टू स्क्वायर यानी कि 4 12j। सो एंगुलर मोमेंटम हमें बताना है, एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p और m
आर क्रॉस वी। ओके, तो हमें इसकी जो भी नहीं पड़ेगी, एक्सेलरेशन की भी। वेलोसिटी एट 2 हो जाएगा 2i माइनस 6 into 2 12, 2i into 12j। सो लेट अस डू। मास 2 गिवन है तो मास को हम एज इट इज बाहर रख लेते हैं। आई जे के, हमारे पास वेलोसिटी में आते हैं 2 and 12, 2 and minus 12, 0। और सॉरी नोट, आर क्रॉस वी होगा तो पहले आर रखना होगा हमें। सो आर इज 4 minus 12 0, v is 2 minus 12 0। जब इसको सॉल्व करते हैं 2, तो आई और जे के तो कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, ओनली के बचेगा। 2 ऑफ के, 2 यहाँ से के एज इट इज, माइनस 48 माइनस माइनस 24 यानी कि प्लस 20। सो दिस गिव्स अस 2k इंटू नेगेटिव 24 और माइनस 48k विल बी द आंसर। सो अगर हम कंपेयर करें, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A metal coin of negligible mass, also not negligible, 5 gram mass, radius 1 centimeter, is fixed to a thin stick AB of negligible mass. AB negligible mass है, as shown in the figure. The system is initially at rest. The constant torque that will make the system rotate about AB at 25 rotation per second in 5 seconds is closed. तो देखिए, स्टार्टिंग में सिस्टम रेस्ट पे है, यानी कि ओमेगा इनिशियल 0, ओमेगा फाइनल गिवन है 25 आरपी रोटेशन पर सेकंड है, आरपीएस। और 25 आरपीएस का मतलब हो जाएगा 25 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड और 50 पाई रेडियन पर सेकंड। सो दिस इज 50 पाई रेडियन पर सेकंड। टाइम गिवन है 5 सेकंड। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ऐसे ही ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो यहां से अल्फा आ जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी, 50 पाई माइनस 0 बाय टी, यानी कि 50 पाई बाय 5 और इक्वल टू 10 पाई। ये हमारे पास अल्फा आ जाता है। और बिकॉज क्वेश्चन में टॉर्क निकालनी है, टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा। सो नाउ कमिंग टू आई। अब आपके पास ये कॉइन है, और कॉइन किसकी तरह बिहेव करता है, लाइक ए डिस्क। और ये जो एक्सिस ए बी है, ये क्या है, पैरेलल टू डायमीटर। तो अगर आपके पास एक डिस्क है, उसके डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 mr²। और अगर डायमीटर के पैरेलल के अलोंग एक्सिस, यानी इसको टेंजेंशियल एक्सिस भी बोल दिया जाता है, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा, इसमें आप क्या ऐड कर दोगे mr², तो ये टोटल हो जाएगा 5/4 mr²। मास 5 ग्राम है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, सो इट विल बी 5/4, 5/1000 एंड 1/100 का स्क्वायर। So it will be 25/4 into, यहाँ से 4, यहाँ से 3, यानी 10⁻⁷। This will be the value of I. So torque is equal to 25/4 into 10⁻⁷ into I, that is 10 pi। So जब हम इसको इधर से डिवाइड करते हैं, this will give us 10⁻⁻⁶, 25 pi/4 into 10⁻⁻⁶, और
जब आप 25 को 4 से डिवाइड करोगे आपको 6 के समथिंग मिलेगा। 6 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 18 और 19 मिलेगा, यानी आप 20 ले सकते हैं। 20 इंटू 10⁻⁻6 और ये अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻5 देगा। So option D will be the right answer. So next question. A rectangular solid box of length 0.3 meter is held horizontally with one of its sides on the edge of a platform of height 5 meter. So height की value 5 meter है यहाँ पे. When it released, it slipped off the table in very short time. t 0.01 second given है. Remaining essentially horizontal, the angle at which it would rotate when it hits the ground will be close to. तो एंगल बताना है कि कितने एंगल पे ये रोटेट कर चुका होगा. So let me explain the question first. तो आपके पास एक ऐसे प्लेन है एंड यहाँ पे ग्राउंड है. नाउ विथ फिल, और ये आपके पास एक स्लैब है. ये स्लैब स्टार्टिंग में ऐसे रखी हुई है, फिर आप इसको सडनली मूव करवाते हो. कैसे? ऐसे. और ये मूव हो रही है मीन्स इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, जो कि 0.01 सेकेंड टाइम भी है. और आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो ये एज है, ये आपका ग्राउंड का रेड का एज और इस जो आपकी ये स्लैब है वाइट, इन दोनों का एज एक दूसरे के लिए कितनी देर तक कांटेक्ट में रहता है? 0.01 सेकंड तक कांटेक्ट में रहता है. तो जब तक ये कांटेक्ट में रहेगा, यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी. तो जब तक ये कांटेक्ट में है, यहाँ पे क्या एक्ट करेगा? एक टाइप का टॉर्क एक्ट करेगा. और टॉर्क से आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन से आपको ओमेगा मिलेगा. जैसे ही इसका कांटेक्ट रिलीज हो जाएगा, अब इस ऑब्जेक्ट के पास कोई रोटेशनल के लिए एक्सिस नहीं बचेगा, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करेगा. पहले क्या हो रहा था कि पहले ये इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा था और एक्सेलरेट कर रहा था. अब जब ये नीचे जा रहा होगा, अब बिकॉज इसके पास रोटेशन के लिए कोई एक्सिस नहीं है, तो अब ये फर्दर एक्सेलरेट नहीं करेगा. अब ये फर्दर एक्सेलरेट नहीं करेगा और जस्ट रोटेट करेगा जब ये नीचे जा रहा होगा. जस्ट लाइक दिस, ओनली रोटेशन. और जब ये इधर कांटेक्ट में था, तब इसके पास क्या हो रहा था? इसके ऊपर टॉर्क लग रही थी, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा था. रोटेशन एक्सेलरेशन हो रहा था. अब आप बोलोगे कि सर जब ये नीचे आ रहा है तो टॉर्क तो इस पर तब भी लगनी चाहिए, तो तब ये एक्सेलरेट क्यों नहीं हो रहा? तो लेट मी एक्सप्लेन. जब ये यहाँ पे है, तब इस पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे mg डाउनवर्ड लग रहा है. इसमें यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है जिसके पास, ये फिक्स पॉइंट क्या कराएगा? इसको ऐसे रोटेशन प्रोवाइड करेगा. और ये टॉर्क है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अल्फा आ जाएगा. नाउ जब ये नीचे आ जाता है, सपोज यहाँ पे आ जाता है, तो अब इसके पास एक फिक्स पॉइंट नहीं है, तो जो रोटेशन होगी वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही होगी, और mg सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है. तो अब जो टॉर्क है वो जीरो हो जाएगी, बिकॉज टॉर्क भी सेंटर ऑफ मास के अराउंड हो रही है और mg भी सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है. तो दोनों एक्सिस केसेस में टॉर्क जीरो हो जाती है इस सिनेरियो में. दैट्स व्हाई जब ये ऊपर है तभी इस पे नेट इफेक्टिव टॉर्क लगती है, जिसकी वजह से इसमें रोटेशन पॉसिबल हो पाता है और एक्सेलरेशन पॉसिबल हो पाता है. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें उस शॉर्ट टाइम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा कैलकुलेट करना है, फिर अल्फा और शॉर्ट टाइम का यूज करके ओमेगा कैलकुलेट करना है, और फिर वो ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा. और फिर हमें कैलकुलेट करना होगा कि जो ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. अगर हमारे पास टाइम आ गया, ओमेगा आ गया, तो हम ओमेगा को टाइम से मल्टीप्लाई करके थीटा निकाल सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना एंगल वो रोटेट कर रहा होगा.
सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो सपोज कीजिए यही पॉइंट है, यहाँ पे टिपिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे mg डाउनवर्ड लगेगा, तो जो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी, टॉर्क हो जाएगा mg इंटू एल बाय टू। और टॉर्क के लिए अनदर रिलेशन होता है आई एल्फा, बिकॉज रोटेशन का पॉइंट ये है, इसको अगर आप O बोल देते हो तो इसके अलोंग रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वायर बाय 3। सो mg l by 2 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 इंटू एल्फा। एल से ये स्क्वायर कैंसल, एम से एम कैंसल, तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है 3g बाय 2l। ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, और स्टार्टिंग ओमेगा तो जीरो था, तो ओमेगा फाइनल आ जाता है सिंपली अल्फा इंटू टी। सो 3g बाय 2l इंटू टाइम इज 1 by 100, so it comes to 3g by 200l। तो ये आ जाता है हमारे पास ओमेगा फाइनल, कि इस फाइनल वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा होगा ना। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा और उसी टाइम तक ये रोटेट करेगा। ये जो h हाइट है 5 मीटर, जब तक इससे नीचे आएगा, डाउनवर्ड आएगा, तो इस हाइट तक ही, इस हाइट के दौरान ही नीचे गिरते हुए रोटेट करेगा। तो उसको नीचे जाने के लिए टाइम कितना मिलेगा? टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग दिस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियली वेलोसिटी जीरो होगी, s की वैल्यू h है, और यहाँ पे डाउनवर्ड एक्स ये तो जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी लगेगा t, सो t की वैल्यू आ जाएगी 2h बाई जी। h की वैल्यू 5 गिवन है हमें, सो 2 इंटू 5 10 बाई 10, t आ जाएगा 1 सेकेंड। सो हमारे पास टाइम आ गया, और नाउ थीटा होता है ओमेगा इंटू टी। सो इस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 3g बाई 200l इंटू 1। वैल्यूज पुट करते हैं, g की वैल्यू 10 है, 200l की वैल्यू है हमारे पास, l इज 0.3, यस 0.3, सो यानी कि 3/10। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा हाफ और 0.5 रेडियन। So going comparing, option A is the right answer. So let me explain again कि पहले यहाँ पे क्या होगा कि जब ये आपका स्लाइड कर रहा होगा तो 0.10 सेकंड के लिए कॉन्टैक्ट में रहेगा, उसके दौरान इस पे टॉर्क लगेगी और उससे इस पे अल्फा आएगा, और उसी दौरान इसको एक ओमेगा मिलेगी, ओमेगा फाइनल मिलेगी। जब ये इससे अलग हो जाएगा तो वो उसी ओमेगा से रोटेट करता हुआ नीचे आके गिरेगा। तो पहले आपको ओमेगा फाइनल कैलकुलेट करनी है, फिर नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप थीटा कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो a particle of mass 20 gram released from with an initial velocity of 5 meter per second along the curve at point A। तो यहां से रिलीज किया जाता है पार्टिकल को, shown in the figure। A is point h height from the B, the particle slides along the frictionless surface। कोई फ्रिक्शन नहीं है, मींस एनर्जी कंजर्व रखेंगे। when the particle reaches at point B, its angular momentum about point O। तो जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है तो O पॉइंट के अराउंड उसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें O पॉइंट के अराउंड एंगुलर मोमेंटम बताना है तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस अबाउट O, यानी कि OB, ROB। तो मास हमें पता है 20 ग्राम है, वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, और ROB, O से B तक का डिस्टेंस कितना है, ये 10 और ये 10 to 20 मीटर। तो अब जस्ट हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं, दैट टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ए पॉइंट में कितनी एनर्जी है, हाफ एम, और v कितना है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 25 हो जाएगा, प्लस
एम जी और हाइट कितनी है, अगर हम बी पॉइंट को ग्राउंड मानते हैं तो हाइट हो जाएगी 10 मीटर। सो एम जी 10 इक्वल टू बी पॉइंट के लिए हाफ एम वी बी स्क्वायर इंटू और प्लस हाइट यहाँ पे जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट के लिए हाइट हमने ग्राउंड माने तो जीरो हो जाएगा। सो एम से एम कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और इट विल बी 25/2 प्लस 10g यानी कि 100 इक्वल्स टू वी बी स्क्र बाई 2। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 200 इक्वल टू वी बी स्क्र और यहाँ से वी बी आ जाएगा 225 का अंडर रूट यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास वी बी आ चुकी है तो एल क्या आ जाएगा, मास है लेकिन हमने 20 ग्राम। सो मास इंटू वेलोसिटी 15 इंटू डिस्टेंस 20। सो जीरो से जीरो कैंसल, ये हमें देगा 15 इंटू 2 30 इंटू 2 60 बाय 10 यानी कि 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a slab is subjected to two forces F1 and F2 of same magnitude F shown in the figure। मैग्नीट्यूड सेम है, ये F1 लग रहा है और F2 लग रहा है और अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके प्लेन्स अलग अलग है। F2 इज इन XY प्लेन, जो F2 है वो XY प्लेन में है यानी कि इसके कंपोनेंट ओनली X और Y डायरेक्शन में होंगे। और अगर हम इसके कंपोनेंट्स को रिजोल्व करें तो ये देखिए हमें मैग्नीट्यूड्स तो नहीं गिवन इनके। सो लेट अस रिजोल्व देयर कंपोनेंट्स। पहले हम F1 के ही कंपोनेंट को रिजोल्व करते हैं। सो F1 नॉट F2, हाँ पहले हम F2 को रिजोल्व कर रहे हैं। तो F2 का एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा होगा और ये कहाँ पे जा रहा होगा, ये जा रहा होगा माइनस वाई डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा होगा और ये जा रहा होगा किसमें, माइनस एक्स डायरेक्शन में। ये कंपोनेंट माइनस वाई में जाएगा और ये कंपोनेंट माइनस एक्स में जाएगा यानी कि F2 के सारे कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। एंड अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। तो हमारे पास F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 के कंपोनेंट्स क्या होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। F2 ये वेक्टर फॉर्म है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। सो F2 cos ऑफ 30 और ये नेगेटिव होगा, नॉट 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 cos ऑफ 30। पहले हम x वाला कंपोनेंट लिख रहे हैं तो x वाला तो यहाँ पे है, x कंपोनेंट ऐसे है तो ये वाला कंपोनेंट x का है तो ये हो जाएगा sin 30 और ये नेगेटिव होगा I और F2 cos 30 j, ये भी नेगेटिव। नाउ कमिंग टू F1, जो F1 है एक्ट अलोंग z एक्सिस एट ए पॉइंट। F1 इस पॉइंट पे लगता है, z एक्सिस के अलोंग लगता है। मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट पॉइंट O, पॉइंट O के अबाउट इनकी हमें मूवमेंट बतानी है। और मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू होता है टॉर्क। ओके, सो हम पहले F2 के लिए करते हैं और हाँ इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ही डालेंगे तो यहाँ पे F आएगा ओनली, बिकॉज ये मेंशन है मैग्नीट्यूड इज सेम। सो F2 इज मैग्नीट्यूड इनटू एंगल्स। नाउ बिकॉज O पॉइंट के लिए टॉर्क कैलकुलेट करनी है तो अगर हम यहाँ पे बोल दे पॉइंट A, यहाँ पे बोल दे पॉइंट B और ये पॉइंट C है सपोज, तो टॉर्क फॉर F2 हो जाएगा R, इसका डिस्टेंस है OA क्रॉस F2 फोर्स। नाउ R ऑफ OA ये सिर्फ किस एक्सिस में है, ये सिर्फ Y एक्सिस में है। जो OA डिस्टेंस है ये सिर्फ Y एक्सिस में है और उसकी वैल्यू आप यहां से देखते हो इट इज 6।
So it is only 6j. Cross product with minus f sin 30i minus f cos 30j. तो j का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ओनली हमें मिलेगा दिस वन। और ये भी j क्रॉस i है, और i जो i क्रॉस j पॉजिटिव की होता है, j क्रॉस i हमें नेगेटिव की देगा, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस विल गिव अस 6f इंटू साइन ऑफ 30 इंटू k, और साइन 30 होता है हाफ, तो ये हमें देता है 3f k। ये मिलता है हमें f2 से। नाउ कमिंग टू f1। सो जो f1 है वो ओनली किस में है, z डायरेक्शन में है, यानी कि इसके पास एक ही कंपोनेंट है, इट इज f ऑफ k। और इसके लिए जो डिस्टेंस है इट इज OC। तो यहाँ पे जो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क फॉर f2 इक्वल टू r वेक्टर OC क्रॉस f ऑफ k। एंड नाउ r ऑफ OC भी हमें ऑलरेडी गिवन है, ये देखिए f1 acts along z axis at point 2i plus 3j। तो r of OC हमें गिवन है 2i plus 3j। so let us put this value 2i plus 3j into क्रॉस प्रोडक्ट with f of k। तो जब हम इनके इंडिविजुअल क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमें देगा 2f i क्रॉस k। i क्रॉस k हमें देगा माइनस ऑफ j, बिकॉज k क्रॉस i j होता है, एंड प्लस 3f j क्रॉस k हमें देगा i। सो दिस विल बी 3fi माइनस 2fj। और अगर हम टोटल टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो टोटल टॉर्क यहाँ पे k वाला कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सो 3fi माइनस 2fj ये टोटल टॉर्क है, प्लस 3fk। बिकॉज डायरेक्शंस का केयर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई जे के जब हमने लिया तो हम नॉर्मली इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हम ऑलरेडी केयर टेक कर चुके हैं। सो इट विल बी 3i minus 2j plus 3k into f कॉमन लेके, so 3 minus 2 plus 3, here is the option A is the right answer. Next question and today's last question. Magnitude of torque of a particle of mass 1 kg is 2.5 Newton meter. So torque की वैल्यू गिवन है 2.5 न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन, यानी कि 0 के अबाउट। इफ फोर्स एक्टिंग इज 1 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू गिवन है 1 न्यूटन, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 मीटर, आर की वैल्यू है 5 मीटर। एंगल बिटवीन द फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर इन रेडियन हमें बताना है, एंगल बताना है। So we know that torque is Rf sine of theta. So torque is 2.5, R is 5, force is 1, sine of theta 2.5 by 5 यानी कि हाफ इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, और साइन थीटा हाफ होता है 30 डिग्री, वो डिग्रीज में है, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 5/6 रेडियंस। सो विद दिस हमारी आज की वीडियो यहीं पे हम फिनिश करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट मिली होगी, आपको आपके कंसेप्ट्स बेटर हुए होंगे। इवन देन अगर आपका किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है या आपके कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। एंड आल्सो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली तो आप ये QR कोड स्कैन करके विद वट एवर अमाउंट यू वांट टू डोनेट आप डोनेट कर सकते हैं। इससे हमें बेटर बुक्स और बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है। एंड आल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए जितना हो सके, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू शेयर एंड सब्सक्राइब। With this we will meet in next video, and thanks for watching.